جامعہ صاحب صفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی دبا دیجئے بیل آئیکن کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعة من العرب والعجم، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنة مقرین، بقولہ تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، شیطان انسان کا پہلے دن سے ہی دشمن ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کی دشمنی شروع ہے، اور اس کی دشمنی کا عروج اور انتہا اس وقت ہوئی جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا۔ اور اللہ جل شانہ و من والہ نے قرآن مقدس میں ہمیں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن تمہارا، اسے دشمن سمجھو۔ سورہ یاسین میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ تو اللہ نے اعلان فرمایا، شیطان خود بھی اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے، جسے قرآن پاک نے 14ویں پارے میں بھی ذکر فرمایا اور 23ویں پارے میں بھی ذکر کیا۔ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اس نے اللہ سے مکالمہ کیا اور مہلت طلب کی، اللہ نے مہلت دے دی تو پھر اس نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب تو نے مجھے دھتکار دیا جن کی وجہ سے لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم، البتہ ضرور بھی ضرور میں ان کے لیے دنیا میں برے اعمال کو، بری حرکتوں کو، گندی حرکتوں کو مزین کر دوں گا، اور میں ان کو ضرور بہکا دوں گا، ہدایت سے دور کر دوں گا۔ سورہ صاد میں یوں اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم، تیری بڑائی اور کبریائی کی قسم، میں ان سارے لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی وجہ سے شیطان آج تک ہمیں گمراہ میں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ، پہلی کوشش اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان سے روک دے، ایمان سے روک دے، اور میرے بھائیوں اس کوشش میں بھی وہ بہت سے لوگوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑے دانا اور عقل مند، بہت بڑے سائنسدان، تجربہ کار، ڈاکٹر اور انجینئر، لیکن ان بیچاروں کو شیطان کے نرغمے میں آئے، انہیں اللہ کی بڑائی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنے بڑے ڈاکٹر جو جگر کا آپریشن کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ بیچارے پتھر سے بنی ہوئی مورتی کو پوج رہے ہیں، اور حالت یہ ہے وہ گائے کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں۔ تو یہ وہ اس کا چال ہے، یہ اس کی گمراہی کے جو جال ہیں ان میں وہ پھنسایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض لوگوں کو تو وہ ایمان کے لیے طرف آنے نہیں دیتا، اور جو اس کے اس مکر سے، اس کے اس جال سے،
उसकी साजिश से बच जाए तो फिर अगली उसकी कोशिश ये कि वो चाहता है कि लोगों को नेक आमाल ना करने दे, फिर उनको बुराइयों में ईमान तो है लेकिन बदकारी में ईमान तो है, लेकिन ज़नाखोरी में ईमान तो है, लेकिन झूठ में ईमान तो है, लेकिन नमाजों को छोड़ने में ईमान तो है, लेकिन शराब नोशी में, जितनी भी बुराइयां हैं उनमें मुब्तला करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग फिर बेचारे उनमें मुब्तला हो जाते हैं और उसके चक्कर में आ जाते हैं। और शैतान का तीसरा जाल, बाज़ दफ़ा लोग बहुत से जो खुश नसीब हैं वो इससे भी बचते हैं। फिर उसका तीसरा जाल ये है, जो लोग नेक आमाल कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, जिनके जो नेकियां जिनका ताल्लुक इबादत, बदनी इबादत के साथ है वो भी करते हैं, वो नेकियां जिनका ताल्लुक माल के साथ है वो भी करते हैं, यानी वो हज भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, और जिनका ताल्लुक लोगों के साथ उठने बैठने के साथ, मामलात व मुआशरत के साथ है, यानी खर्च करना, मदरसे बनाना, हॉस्पिटल बनाना और लोगों के काम आना, वो भी करते हैं। तो ये काम बज़ाहिर वो करते हैं, तो फिर उसका जो हदफ ये लोग होते हैं कि इनको कैसे गुमराह करूं, इनको कैसे गुमराह करूं, इनकी नेकियों को अब ज़ाया कैसे कर दूं। पहले तो ईमान नहीं लाने देता, जो ईमान ले आए उनको नेक काम नहीं करने देता, जो नेक काम करे उसके ऊपर उसकी कोशिश होती है कि इसके नेक आमाल को बर्बाद कैसे करूं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमारी गुफ्तगू है, वो उस शैतान के उस मकर से नहीं है कि जिनके ऊपर वो क्या कर देता है, कोई ईमान नहीं, बल्कि आज हमारी गुफ्तगू हम अपने लिए कर रहे हैं। उम्मत का वो तबका, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को मानने वालों का वो जमात, वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो रोज़े रखते हैं, जो जिक्र करते हैं, जो इमामत करते हैं, जो उसकी इक्तिदा करते हैं, उन लोगों के मुतालिक है कि वो शैतान के मकर से किस तरह बचें और उनको शैतान कैसे बहकाता है, उनके लिए शैतान ने क्या जाल बनाया। उनके लिए जो शैतान ने पहला जाल बनाया, जो सबसे खतरनाक जाल है, वो तकब्बुर है। वो तकब्बुर है। किस तरह मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पर तकब्बुर किस तरह होगा कि एक आदमी ज़ना करता है, उसको बुरा समझता है, क्योंकि लोग भी बुरा समझते हैं, उसको पता है लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वो बुरा समझता है। लेकिन तकब्बुर क्या है? तकब्बुर ये है कि अपने आप को आला समझना और दूसरे को घटिया समझ लेना, अपने आप को आला समझना, दूसरे को घटिया समझ लेना। फिर इस बुरे अमल में, तकब्बुर के इस अमल में अल्लाह, ये शैतान ये जोर लगाता है नेकोकारों पर। इसलिए फरमाया तकब्बुर जो करने वाले हैं वो दो किस्म के लोग हैं। ये तकब्बुर के असबाब दो सबब हैं, एक सबब दीनी है और एक सबब दुनियावी है। फिर दीनी 2 सबब हैं, दुनियावी 5 सबब हैं। दुनिया के 5 सबब आज हमारी गुफ्तगू उस पे नहीं है। आज हमारी गुफ्तगू है दीनी असबाब। दीन के 2 सबब हैं जिसमें वो मुब्तला करके इंसान की नमाज, इंसान के रोजे, इंसान की मेहनत को जाया कर देता है। वो 2 सबब हैं, उनमें से एक सबब इल्म और दूसरा सबब अमल है। पहला सबब इल्म है, वो इल्म की वजह से तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। मैं उस्ताद तफसीर हूं, मैं बहुत बड़ा कारी हूं, वो नहीं तजवीद वसूला में नहीं पता है, मैं आवाज ही चंगी सू। अब मैं अपनी भी कमियां, आपको हो सकता है ये बात समझ ना आए, लेकिन इस बात की मुझे जरूर है। समझ लग रही है जी? वो क्या कि इल्म आ गया, हदीस में महारत आ गई, अब किसी को इंसान ही नहीं समझ रहा, वो नहीं, उसको हदीस पढ़ानी नहीं आती, उसको फिक़ह नहीं आती। इल्म के ऊपर तकब्बुर, ये इल्म के ऊपर तकब्बुर, ये भी बर्बादी का जरिया। और दूसरा फिर अमल के ऊपर तकब्बुर, ये देखो जी, ये कैसे मौलवी साहब है, तहज्जुद नहीं पढ़ते, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, है कि नहीं जी मेरे भाइयों? ये तकब्बुर में मुब्तला कर देते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं और जो नमाज नहीं पढ़ता उसको हकीर जान लिया। मैं पाक दामन हूं, जो बदकारी में मुब्तला उसको हकीर जान लिया। मैं सच बोलता हूं, जो झूठ बोलता है उसको हकीर जान लिया। मैं रिश्वत नहीं लेता, लेकिन जो रिश्वत लेता है उसको हकीर जान लिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, याद रखना, रिश्वत नहीं लेनी, हमने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। हमने नमाज पढ़नी है, नमाज छोड़नी नहीं है। हमने जो नमाज नहीं पढ़ता उसको जाके मिन्नत और तरला तो करना है। जो झूठ बोलता है उसको नबी की हदीसें तो सुनानी है। जो बदकारी में मुब्तला है उसको
उसको जना के नुकसानात तो बतलाने हैं। जो बंदा हराम खोरी में मुब्तला है उसको रिज़्क़ हलाल के फजाइल तो सुनाने हैं। जो नमाजें नहीं पढ़ता उसको नमाजों की अजमत और फजीलत तो सुनानी है। जो कुरान नहीं पढ़ा हुआ उसको कुरान पढ़ने के फजाइल तो सुनाने हैं। लेकिन एक कुरान पढ़ने वाला एक अनपढ़ को घटिया समझे, एक नमाजी बेनमाजी को घटिया समझे, सच बोलने वाला झूठ बोलने वाले को घटिया समझे, पाक दामन जनाकार को घटिया समझे। और इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सखावत करने वाला वो शख्स जिसका इतना दिल नहीं है उसको घटिया समझे। अल्लाह को ये कतन बात पसंद नहीं है। तो ये दूसरा उसका बड़ा जाल, वो नेकियों को जाया करवाता है, लोगों की कमियां दिखलाकर वो नेकियों को जाया करवाता है, खुद बंदा अपने आप को बड़ा समझकर। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की मजम्मत को यूं इरशाद फरमाया, अल किब्रिया और रिदाई वल अज़मतु इज़ारी। किसी को अपनी नमाजों पर, किसी को अपने रोजे पर, किसी को अपनी पाकदामनी पर, किसी को अपनी तिलावत कुरान पर, किसी को रात के तहज्जुद के नफलों पर, किसी को अपने सजदों पर, किसी को अपनी इबादत पर, किसी को रियाजत पर, किसी को सखावत पर, किसी को शहादत पर, किसी को इफ़्फ़त और पाकदामनी पर, किसी को हदीस पर, किसी को तफसीर पर, किसी को फिक़ह के जानने की वजह से अपने ऊपर अपने आप को आला समझने की, किसी को घटिया समझने की इजाजत नहीं है। याद रखना, अल किब्रिया और दाई, तकब्बुर ये मेरी चादर है। तकब्बुर का हक सिर्फ मुझे अल्लाह को है, किसी और को नहीं। वल अज़मत व एजारी, और अज़मत और बड़ाई, तारीफ और मदा ये मेरा तहबंद है। ये अपनी मदा और तारीफ सुनने का जज्बा ना रखना, ये भी मेरी चादर है, ये भी मेरा तहमद है। फरमाया फमन युनाज़िउनी या फमन नाज़अनी, जो शख्स मेरे साथ इनमें से किसी के बारे में झगड़ा करेगा, युअज़्ज़िबुहु, मैं उसको अजाब दूंगा। एक जगह पे यह है, दूसरा है अज़्ज़बतुहु, मैं उसको अजाब दूंगा। और एक जगह पे यह है क़समतुहु, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं है। और आज हमने देखा नहीं है, बड़े बड़े मुतकब्बिरों के अल्लाह टुकड़े करके रख देते हैं। कभी हमने गौर किया इस पे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तो शैतान का पहला मकर, पहला धोखा, मैं बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो झूठ बोलते हैं। मेरे भाइयों, ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जो सच बोलते हैं, जो हलाल खाते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाते हैं, जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, जिनके बच्चे कुरान के हाफिज बन गए, जिनकी औलाद बड़ी नेक है, वो बच जाएं शैतान के मकर से। और शैतान उनके ऊपर जो पहला दाव चलाता है वो क्या है जी? वो पहला तकब्बुर है। तकब्बुर क्या होता है? किसी को घटिया समझना और अपने आप को आला समझना। और दूसरा जो गुमराह करता है वो भी तकब्बुर ही की किस्म है, वो फखर है। वो फखर क्या? अपने आप को अच्छा समझना, किसी को घटिया नहीं समझना, अपने आप को, अपने दिल में इतराना। कभी चाल में फखर है, कभी बोल में फखर है, कभी नसब पे फखर है, कभी हदीस पे फखर है, कभी तफसीर पे फखर है। मसलन मैं बड़ा मुहद्दिस हूं, मैं बड़ा मुफस्सिर हूं, मैं बड़ा फकीह हूं, मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हूं, और मैं तो कभी किसी बीबी अल वेखिया ही नहीं, माशाअल्लाह जी, आज तक कभी हराम दा लुकमा खादी। मैं हूं। यह भी बहुत खतरनाक है। तीसरी चीज जो बज़ाहिर बड़ी हल्की है और हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है, अगर उसमें इंसान मुब्तला हो जाए तो उसका नतीजा ये निकलता है, या बंदा रियाकारी की तरफ चला जाता है, वो पहुंचाती है रियाकारी की तरफ, और रियाकारी भी तबाही है, या वो पहुंचा देती है तकब्बुर की तरफ, और तकब्बुर भी तबाही है। वो क्या? वो खुशामद पसंदी, मदा पसंदी, खुद नुमाई, खुद बीनी, मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई खुशामद करे, मेरे तस्करा, मेरे अच्छे तस्करे किए जाएं, मुझे अच्छे अलकाबात से नवाजा जाए, मैं जब जाऊं तो लोग खड़े हो जाएं, मैं जिस मजलिस में बैठूं लोग मुझे इज्जत दे दें। मदा, यह भी बहुत खतरनाक है। तो ये 3 चीजें हैं जो इंसान की नेकियों को बर्बाद, उनमें से पहली तकब्बुर की एक नहूसत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो तकब्बुर करेगा वो मेरी छत से, वो मेरी अजमत और शान से, वो मेरी चादर से टकराता है, और अल्लाह से टकराने वाला पाश पाश ही होता है। इसलिए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
पूछा गया वो कौन सी बुराई है जिसके होते हुए कोई नेकी भी नफा नहीं देती, वो कौन सी बुराई है जिसके होते हुए कोई नेकी नफा नहीं देती। फरमाया तकब्बर, तकब्बर, ये किबर है वो बुराई जो जिससे नेकी भी नफा नहीं पाती। अब मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, तकब्बुर की मुजम्मत अहादीस में बहुत ज़्यादा, मैं आपकी खिदमत में तकब्बुर के नुकसानात अर्ज करना चाहता हूँ। तकब्बुर के नुकसानात ये हैं, बाज़ औक़ात इंसान के नेक अमल ज़ाया हो जाते हैं। नेक अमल, इतना तकब्बुर इतनी बुरी चीज़ है, सारी ज़िंदगी की मेहनत और रियाजत क्या हो जाती है जी, ज़ाया हो जाती है। बाज़ औक़ात इंसान के नेक अमल तो ज़ाया, इंसान के नेक अमल भी ज़ाया होते हैं, बाज़ औक़ात ईमान भी छिन जाता है। अल्लाह ईमान छीन लेते हैं, अल्लाह ईमान छीन लेते हैं तकब्बुर की वजह से। और ये ईमान जो छीना जा रहा है किसी जानी से नहीं, ये जो ईमान छीना जा रहा है किसी जानी से नहीं, ये ईमान जो छीना जा रहा है किसी शराबी से नहीं, ये जो ईमान छीना जा रहा है किसी बदकार से नहीं, ये जो ईमान छीना जा रहा है किसी हरामखोर से नहीं, नहीं नहीं, ये ईमान अल्लाह छीन लेते हैं तकब्बुर की वजह से कि वो मुतकब्बिर तहज्जुद गुजार होता है, वो मुतकब्बिर मस्जिद का इमाम होता है, वो मुतकब्बिर मस्जिद का खतीब होता है, वो मुतकब्बिर कुरान का कारी होता है, वो मुतकब्बिर फिका का इमाम होता है, वो मुतकब्बिर मुहद्दिस होता है, वो मुतकब्बिर मुफस्सिर होता है, वो मुतकब्बिर पाक दामन होता है, वो मुतकब्बिर माँ बाप का खादिम होता है, वो मुतकब्बिर सखी होता है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद जब वो लोगों को घटिया समझता है, लोगों को हकीर समझता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु उसके ईमान को छीन लेते हैं। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, अगली बात अर्ज करने लगा हूं, ये तकब्बुर किसी ईमान वाले पे नहीं किया, ये तकब्बुर किसी नमाजी पे नहीं किया, ये तकब्बुर किसी तहज्जुद गुजार पे नहीं किया, ये तकब्बुर किसी मोमिन नेक पे नहीं किया। ये तकब्बुर अगर किसी ईसाई पे, किसी यहूदी पे, किसी मजूसी पे भी किया जाए, अल्लाह को मुतकब्बिर इतना नापसंद है, अल्लाह उससे भी ईमान छीन लेते हैं। तो पहली बात जो नेकियों को जाया कर देता तकब्बुर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इहया उलूम के अंदर सफ़ा नंबर 534 पे लिखते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद और एक फसादी आदमी, एक आदमी था जो जहां बैठता लोगों में लड़ाई करवा देता। वो इतना उसका मिजाज ऐसा था कि वो मशहूर हो गया कि ये फसादी है। ये क्या है? ये फसादी है। मशहूर हो गया लोगों में, ये फसाद मचाता है, ये मशहूर हो गया कि ये फसादी है। और दूसरा शख्स ऐसा कि वो इबादत गुजार है और वो मशहूर हो गया कि ये बंदा बड़ा आबिद है, सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। एक दिन उस फसादी ने देखा कि वो आबिद गुजार आ रहा है और धूप में है, लेकिन अबर ने साया किया हुआ है, बादल ने साया किया हुआ है और साये के अंदर अंदर वो आ रहा है और एक जगह पे वो जाके बैठ गया, साया वहां पे खड़ा है। उस फसादी ने देखा, उसने कहा यार मैं तो बड़ा बुरा इंसान हूँ, मैं वाकई फसादी हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, चलो इस अल्लाह के नेक बंदे के पास, इस इबादत गुजार के पास जाके बैठता हूँ, शायद कि अल्लाह ताला मुझे भी इस बीमारी से छुटकारा दे दे और अल्लाह मुझे भी तौबा की तौफीक बख्श दे। वो गया और उस आबिद को जाके सलाम किया, बड़ी अकीदत और एहतराम से मिला। जब उस इबादत गुजार ने उस फसादी को देखा और कहा क्या काम है? कहा मैं आपके पास बैठना चाहता हूं, आप अल्लाह के नेक बंदे हो, शायद अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को भी माफ कर दे, आपकी मजलिस के असरात हों। वो इबादत गुजार कहने लगा उठ चला जा, तू तो फसादी है, तू तो फसादी है, तू तो फसादी है, उठ चला जा। उसको हकीर समझ लिया। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को कहा, आसमानों से फरिश्ते को कहा निदा दे, आवाज लगा, ऐलान कर। फरिश्ते क्या ऐलान करूं? कहा ये ऐलान कर। फरिश्ते ने फिर ऐलान किया। अल्लाह कहते हैं ए आबद गुजार, ए इबादत गुजार, ए आबिद, तेरे तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने तेरी सारी नेकियों को ज़ाया कर दिया और ए गुनाहगार और फसादी, तेरी आजिज़ी की वजह से, तेरे गुनाहों के एतराफ़ की वजह से, तेरे अपने आप को घटिया और हकीर और रजील और जलील समझने की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब दोनों बराबर हो, नए सिरे से मेहनत करो, अब नए सिरे से मेहनत करो। अब नतीजा फरमाया, हदीस में आता है, रवायत में आता है कि अब जब वो उठा, अब वो आबद उठा तो अब आबद चल रहा है, धूप पड़ रही है, वो गुनाहगार उठा, अब साया उसके ऊपर है। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, किसी को हकीर ना समझिए, किसी गुनाहगार को भी हकीर ना समझिए। बाज़ औक़ात गुनाहगार को हकीर समझने की वजह से अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु
नेकियां ज़ाया कर देते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात अल्लाह ईमान भी छीन लेते हैं, ईमान छिन जाता है, ईमान छिन जाता है। जवाहिर तारीख़ुल इस्लामी सफ़ा नंबर 329 पे वाक़या लिखा है कि बगदाद में एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर, जिनके पास एक जमे गफ़ीर इल्म हासिल करता, उन्होंने इरादा किया कि मैं हज करूं और साथ अपने तालिब इल्मों को लेके चलूं। फरमाया 500 तालिब इल्मों का, और वो तालिब इल्म इब्तदाई नहीं है, वो तालिब इल्म वो हैं जो खुद मुहद्दिस बनने के करीब पहुंच चुके हैं, खुद मुफस्सिर और फ़क़ीह बन चुके हैं, और वो अपने उस्ताद के साथ चले, पैदल बगदाद से पैदल हज करने का इरादा किया और अपने साथ लेके चले। रास्ते में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की हमद हो रही है, कुरान के हल्के लग रहे हैं, जिक्र के हल्के लग रहे हैं। चलते 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 दिन रात सफ़र हो रहा है। एक दिन सफ़र करते करते पहुंचते हैं दोपहर का वक़्त, थक गए, साथी थक गए। हजरत ने फरमाया तुम आराम कर लो, तुम आराम कर लो, कुछ देर के बाद सस्ताएंगे, सस्ता लो, फिर उठेंगे और अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। वो तलबा एज़ाम सो गए, ये अपनी इबादत में मशगूल हो गया। जिक्र अज़कार में जो उस्ताद हैं, जो मुहद्दिस और फ़क़ीह जो बड़े हैं शेख, वो अपनी मेहनत और रियाजत में मशगूल हो गया। अचानक पढ़ते पढ़ते जब ऐसे उसकी निगाह उठी, क्या देखता है कि इंतहाई हसीन व जमील खूबसूरत लड़की है, बस उसकी निगाह उसी के ऊपर ठहर गई। देखते देखते क्या देखता, वो करीब ही एक गिरजे के साथ एक घर, उसमें वो दाखिल हुई। ये भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, ये उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक राहिब आया, ईसाई पादरी आया, वो राहिब आया। उसने कहा कि मैं मुसलमानों का इमाम हूँ, हम हज के लिए जा रहे हैं, वो 500 साथी मेरे साथ है मेरे, और मैं इस तरह इबादत में मशगूल था। मैंने देखा कि एक लड़की अंदर गई है, वो कौन है? उसने कहा वो मेरी बेटी है। कहा मेरा उससे निकाह कर दे, तेरी इज्जत हो जाएगी, तुझे मकाम मिल जाएगा कि अहले किताब के साथ निकाह हो सकता है। मुसलमान मर्द का यहूदिया औरत के साथ, मुसलमान मर्द का ईसाई औरत के साथ निकाह हो सकता है, मुसलमान मर्द का दोस्तों हिंदू औरत के साथ निकाह नहीं हो सकता। आज बदकिस्मती है, मुसलमान और हिंदू निकाह कर रहे हैं। मेरा ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन चलते चलते हुए एक बात अर्ज कर दूं, इस पाकिस्तान की कदर कीजिए। खुदा की कसम, ये जिस हाल में भी है, जैसा भी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। हजरत तकी उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, अपना सफ़रनामा लिखा है। उसमें वो लिखते हैं, ये 1988 की बात गालिबन वो लिख रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में बाज़ जगहों पर तो मुसलमान और हिंदू आपस में शादियां कर रहे हैं। उस ज़माने की बात है, अब तो क्या हाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बचा हुआ है। ज़ाहिर है वो बेचारे मजबूर होकर करते हैं, माहौल ऐसा बन गया, जहाँ पे उनकी कसरत है वहाँ पे उनका जोर है। फिर बच्चियाँ अपने हाथों में नहीं रहती, बाज़ बच्चे अपने हाथों में नहीं रहते। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इस अर्ज़े वतन को संभालिए, हम अपने फ़राइज़ अदा करें, हम किसी को ऊपर ना बात करें। सफाई नहीं होती, सफाई करने वाला सफाई नहीं करता। मैं ये देखूं जामिया साहब सुफ़ा के बाहर जो हमने गंद डाला, वो तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? वो तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? जो गंदे शॉपर हैं उनको तो कहीं रूढ़ी पे फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते? कि हम केले 10 केले खा के नाला सट्टी आइए, छिलके सट्टी आइए। इस मुल्क की हर एतबार से कदर कीजिए। ये जितनी रिश्वत चल रही है, ये सारे ईसाई और यहूदी नहीं ले रहे, ये मुसलमानों के बेटे इस्माइल, मोहम्मद अब्दुल्ला, उमर फारूक, मोहम्मद यूसुफ, ज़बीहुल्लाह, ये लेते हैं रिश्वत। तो इस मुल्क की हिफाजत कीजिए, इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए, इसकी तरक्की के लिए कोशिश कीजिए और इसके अंदर अमन आए, वो सारे आमाल हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो खैर मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, उसने जाके कहा, उसने कहा जा अपनी बेटी से जाके पूछ। वो गया और जाके उसने बेटी को कहा, बड़ा आलिम है, वो कहता मेरा निकाह कर दो, मेरा क्या कर दो, निकाह कर दो। उसने कहा मैं उससे निकाह नहीं करूंगी, मेरी 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें कबूल कर ले तो मैं उसके लिए साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि वो इस्लाम छोड़ दे, ईसाईयत कबूल कर ले, और दूसरी शर्त यह निकाह होना है, उसके लिए हक महर ज़रूरी है। हक महर के बदले में, हक महर में हमारे ये जो खंजीरों का रेवड़ है, ये सूरों का जो रेवड़ है, ये 6 माह तक उसको चराना होगा। वो आया, बाप ने आके खबर दी, उसकी आंख पे पर्दा पड़ा है। अब उसने कहा मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। कुछ देर के बाद वो शागिर्द उठे, उन्हें वो उस्ताद नजर नहीं आ रहे, तलाश करते करते सामने गिरजे में गए। वहां पे वो जो पादरी मिला, उसको कहा कि इस तरह हमारे बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा थे, अब नहीं है। अब कहां हैं? कहा अब वो ईसाई हो चुके हैं, उसके बदले में उन्होंने निकाह करना है। और
اب کہاں ہے وہ؟ کہاں وہ جنگل کی طرف ہمارا وہ سوروں کا ریوڑ لے کر گئے ہیں۔ یہ طالب علم ان کے پیچھے چلے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لاٹھی جس کو سہارا دے کر وہ کبھی خطبہ دیا کرتا تھا، وہ لاٹھی جس کو پکڑ کر کبھی نبی کی احادیث سنایا کرتا تھا، وہ لاٹھی جس کو پکڑ کر کبھی قرآن کی آیتیں سنایا کرتا تھا، اسی لاٹھی کے ساتھ وہ خنزیروں کو اور سوروں کو ہانک رہا ہے۔ یہ شاگرد جب دیکھے ان کی چیخیں نکل گئیں، وہ رو پڑے، جا کے اپنے استاذ کی منت کی، استاد جی یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی، وہ نہ مانے، وہ بیچارے روتے ہوئے چلے گئے، بیت اللہ پہنچے، حج کیا اور اللہ کے آگے مناجات کی، کتنا ہی روئے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو دین کے ساتھ منسلک ہے، ہمیں اسکول و کالج الحمدللہ دین کی برکت سے ہم تو اب اسکول و کالج کے اساتذہ کا بھی بہت احترام کرتے ہیں، یہ دین کی برکت سے۔ جب میں عالم بنا تو پھر مجھے پتا چلا استاذ کیمسٹری پڑھائے یا بیالوجی پڑھائے اس کا مقام بڑا اونچا ہے، وہ انگریزی پڑھائے یا چائنیز پڑھائے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ استاذ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، اور استاذ کی محبت ایک طالب علم کے دل میں کتنی ہونی چاہیے وہ بھی ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے قسم اٹھائی ہے، بعض اساتذہ سے محبت میری اتنی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ماں باپ اساتذہ کی اتنی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے استاذ کے لیے کتنا روئے ہوں گے، کتنا اللہ کے آگے گڑ گڑائے ہوں گے، واپس پھر اس مقام پہ آئے، استاذ کی منت ترلے کیے لیکن استاذ نہ مانا، وہ پھر بیچارے روتے ہوئے چلے گئے۔ قریب تھا کہ اپنے منزل کو پہنچتے، کیا دیکھتے ہیں ایک صبح کہ پیچھے سے کوئی گھوڑے پہ تیز رفتار گھوڑا آ رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے، اور وہ جب وہ ٹھہر گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی مسافر ہے یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے جو بندہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے قافلے کو ٹھہرایا اور وہیں پہ کھڑے ہوئے، جب وہ دیکھتے ہیں، جب وہ قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ ان کے استاذ ہیں، اور وہ ان کے استاذ یہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب انہوں نے اپنے استاذ کو یہ دیکھا کہ ہمارے استاذ نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ اٹھے، خوشیاں منائیں، ان کو سینے کے ساتھ لگایا۔ اب یہ حالت یہ ہے، اب وہ استاذ جو پہلے جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، جن طرح قرآن پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، استاذ کو اللہ نے اور بڑی عزت دے دی، بڑی عزت دے دی۔ ایک دن طلبہ نے کہا، ہم اپنے استاذ سے پوچھتے ہیں استاد یہ وہ آفت اور وہ مصیبت جس کی وجہ سے آپ کا ایمان چھن گیا تھا، وہ مصیبت کیوں آئی؟ ایک دن ایک طالب علم جو استاذ کے قریب تھے، انہوں نے جا کے پوچھا، وہ استاذ ہم ایک بات پوچھنا چاہتے تھے، وہ جو مصیبت آئی تھی اللہ نے آپ سے ایمان چھین لیا تھا، آپ سے ایمان چھین لیا تھا، اور آپ سوروں کے چرواہے بن گئے تھے، وہ مصیبت کس وجہ سے آئی؟ استاذ نے کہا میں تمہیں بتلاتا ہوں وہ مصیبت میں نے جو محسوس کی ہے کس وجہ سے آئی۔ ایک رات میں اٹھا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر سویا، پھر اٹھا، میں قرآن پڑھتا رہا، پھر میں حدیث پڑھتا رہا، تہجد کا وقت ہوا، میں نے تہجد پڑھی، تہجد کے بعد جب مؤذن نے اذان کہی میں نے گھر میں 2 سجدے پڑھی، اور پھر میں مسجد کی طرف چل پڑا کہ آؤں اور نماز پڑھاؤں، اور نماز کے بعد طلباء اعظام کو قرآن اور حدیث و تفسیر پڑھاؤں۔ اس غرض سے میں نکلا، جب گلی میں کچھ فاصلہ طے کیا، میرے پاس سے ایک عیسائی، اور وہ عیسائی وہ جو گند اٹھانے والے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں آج تو الحمدللہ لیٹرن ہے، آج سے 20 سال 30 سال پہلے قصبات میں میں نے خود دیکھا کہ وہ کیا ہوتا تھا، 30 سال 40 سال پہلے 35 سال پہلے وہ گھروں میں لیٹرن بنا لیتے تھے، لیکن وہ سسٹم نہیں ہوتا تھا نا، گٹر سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو پھر عیسائی یا چوڑا آتا وہ دابڑے میں وہ ڈالتے، اور ساتھ ان کے ساتھ وہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ اٹھاتے اور جا کے پھر ایک جگہ پہ سارا دابڑا جب بھر جاتا تو جا کے وہ روڑی وغیرہ پر پھینک دیا کرتے تھے۔ تو وہ بھی اسی طرح سسٹم تھا، تو وہ چوڑا وہ عیسائی بھی ہے اور پھر کام بھی یہ کرتا ہے، وہ پاس سے گزرا، ان کو بدبو پہنچی اور بدبو کی وجہ سے ان کو ناگواری ہوئی، تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، پرے ہٹ جہنمی مجھ سے دور ہو جا، اے جہنمی پرے ہٹ مجھ سے دور ہو جا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اس عیسائی نے آگے سے یہ جواب دیا، کون جانے کون جنتی کون جہنمی۔ یہ جملہ اللہ کو اچھا لگا۔ چند دنوں کے بعد اس عیسائی کو اللہ نے ایمان سے نواز دیا، اور اسی سال یہ حج کے لیے نکلے تو اللہ نے ان سے ایمان چھین لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کسی کو حقیر نہ سمجھو، تکبر نہ کرو، یہ تکبر اتنی بری بیماری ہے، یہ ایمان کو بعض اوقات چھین لیتی ہے۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے عرض ہے جو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، یہ گفتگو میری ان لوگوں کے لیے نہیں ہے
جو مسجدوں میں آ ہی نہیں رہے۔ یہ واقعات جو میں سنا رہا ہوں یہ عبادت گزاروں کے، محدثین اور مفسرین کے سنا رہا ہوں، یہ ان کے نہیں سنا رہا جو شراب پیتے ہیں، جو بدکاریوں میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو شیطان، میں عرض کیا تھا بہت سے ساتھی ابھی تشریف لائے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف 30 منٹ تو بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے 30 منٹ کے لیے تشریف لے آیا کریں، ٹوٹل 40 منٹ سے 50 منٹ سے زائد اس مسجد میں نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ 24 ایک دن کے 24 کو ضرب دو 7 کے ساتھ کتنے گھنٹے بنتے ہیں، ان میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں مانگ رہے، پونا گھنٹہ تو خدا کے لیے دے دیں۔ اب مجھے اپنی دوبارہ تمہید سنانی پڑے گی کہ یہ سارا عنوان میں کیوں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، یہ ایمان قبول کرنے نہیں دیتا۔ بندہ ایمان قبول کر لے تو نیکیاں نہیں کرنے دیتا، بندہ نیکیاں کر لے تو پھر بھی ایسے گناہ کروا دیتا ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ظاہر ہے وہ کبر ہے، اور کبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا۔ دوسرا فخر ہے اپنے آپ کو اللہ سمجھنا، اور تیسری چیز جو ہے وہ مدح پسندی، خوشامد پسندی، اپنی تعریف کے سننا، میری تعریف کی جائے۔ یہ مولانا صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں، یہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، یہ بھائی بڑا ایماندار ہے، اے منڈا ساڈا، یہ لڑکا تو کمال ہے جی، یہ تو بڑا ہی نیک ہے۔ یہ جذبے رکھنا یہ بڑے خطرناک ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ تکبر کے نقصانات عرض کر دیے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز فخر کے نقصانات، فخر کیا ہے اور فخر کی اجازت ہے کہ نہیں، اور تیسری چیز خوشامد پسندی اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ان کا پھر علاج، ان تینوں بیماریوں کا علاج کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اس خالق کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا، آپ وقت پہ تشریف لے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، سننا، بیان کرنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔